So many congratulations to Vishwesh for his successful attempt, and he has been totally successful in cracking SSB. Vishwesh, we will want to know many more things from you. But first and foremost, do you really think that, doing preparation of SSB after the written exam is a correct approach, or we should start the interview preparation right from the starting, because it needs a psychometric change, it needs a total personality change? What do you think? So whenever you think that you want to join the armed forces, from that very moment you should try and know what is SSB and try to prepare for it. If you are lacking in some of the OLQs, you need to work from very starting point, because SSB is a very long process to judge you. It's a 5-day interview process, and you cannot prepare it for within 1 month or within 1 week. You have to know various type of tests, and you have to see where you are lagging in some of the OLQs. So that's why it shouldn't be started after the written exam. You should start it right from the very starting point. Right, very correct and very true, Vishwesh. Many more things we want to hear from you, and there are many more things which we would like to hear from you. But what do you think? SSB is altogether a psychometric thing, which your GTO, IO, and the psychiatrist out there is looking for a total mindset change and total mindset approach in you, or he's just looking for some answers? Sir, since it was my first attempt, this was my first experience, and according to me, they were looking how you work in a group, how you answer the current affair and world affair, because they are some factual data. The current knowledge is factual data, but rest of the things are based on your psychology, how you react on situation, how you answer the situation considering the context of the question. So that's why they are looking for it. And since I was a fresher, I can't really tell you how what they were looking. But as a candidate, I can say that how you work in a group, how cooperative you are, how you know what's going on around you. You should know everything about yourself. That's very important in SSB. Right, the cooperation in you, the group activity in you, how can you work in the group? They're looking for all of that, and that is basically a psychology. You need a total change in your psychology, and that is what Brigadier Dr. Vijay Sagar Dheman is telling you from so long time, that with NLP techniques and with psychometric analysis, we are really changing your psychometric thing. Brigadier sir is saying, we are really changing your psychology, and we want to from NLP, we want to change your approach. That is something which is much necessary. Learning things cannot, by that you cannot just crack the SSB. You need a full change, and that needs time. Dr. Vijay Sagar Dheman is with us. I welcome you, sir. Brigadier sir, let's us all congratulate Vishwesh, and please welcome Brigadier Dr. Vijay Sagar Dheman. Thank you, Varun. Thank you so much, and thank you, Vishwesh, you are there. Heartiest congratulations to you for making it for the SSB. I'm feeling very overwhelmed with you now. Thank you, So sir. I would like that whatever the experience that you've undergone, whatever you felt, because your dream of joining the armed forces. Okay, Vishwesh, I'm feeling very overwhelmed today that you made it, and I can see you visualizing yourself in uniform. The smile on your face says it all. And heartiest congratulations and very well done. Thank you, sir. Now I would request you that मैं चाहूंगा कि जो बाकी लोग हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी जाना है एसएसबी के लिए, आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपनी जो जर्नी थी टू गेट थ्रू टू द एसएसबी उसके बारे में बात करिए. तो आज सबसे पहले आई विल आस्क यू अराउंड योर जनरली व्हाट इज योर इम्प्रेशन. क्या आप सोचते हो कि 10 दिन की कोचिंग लेने के साथ एसएसबी क्लियर हो जाती है? नहीं सर, एसएसबी बहुत बड़ी प्रोसेस है.
और इसमें खुद को समझना, खुद को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से सडनली क्वेश्चन पूछे उसके खुद के बारे में, तो शायद वो बता ना सके। और वहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू वगैरह, जो जीटीओ वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। इसलिए 10 दिन में ये करना लगभग नामुमकिन है। फिर मेरे को ये बोलो कि आपने भी बाकी लोगों की तरह यही किया कि जब सीडीएस क्लियर हुआ उसके बाद जा करके अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू करी, या नहीं पहले सर, मैंने एसएससी टेक के लिए अप्लाई किया था, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग होती है। पर मैंने ये फरवरी में अप्लाई किया था, और तब से ही मैंने एसएसबी के लिए जानना चालू किया था। करंट अफेयर और वर्ल्ड अफेयर के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो मेरी पहले से आदत थी, इसलिए मुझे उस पर कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। पर बाकी जब जो भी सारे टेस्ट है, व्हाट इज वैट, एसआरटी, वो सब टेस्ट को मैंने फरवरी से ही जानना चालू किया। और उसके बाद पूरे प्रिपरेशन के बाद क्या क्या होता है, खुद के बारे में पीआईक्यू फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी चीजें खुद के बारे में वापस से जानी कि मैंने ऐसे डिसीजन क्यों लिए थे। तो ये सब बहुत बड़ी प्रोसेस है। मुझे तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तो लगे ही थे सर, सब जानने के लिए। तो आप मानते हैं कि आपको एसएसबी प्रिपरेशन करने के लिए 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए। ये 3-4 महीने का जो टाइम है, इसमें आपने जो 15 OLQs जो जिनका एग्जाम होता है, जो पूछी जाती हैं, जो देखी जाती हैं एसएसबी के अंदर, इनके बारे में आपने कैसे तैयारी करी? सर फॉर्चुनेटली पूरी कंट्री जब लॉकडाउन में थी, तब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, और बाकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कुछ करने के लिए थी नहीं, कॉलेज वगैरह सब बंद थे। तो मेरे लिए पूरा फोकस मेरा एसएसबी पे ही था। तो मेरे फ्रेंड्स थे नीलाक्षी, अरिंदम, चिन्मय वगैरह, तो उनकी हेल्प से मैंने टेस्ट वगैरह सब जान लिए कि कैसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, किसमें क्या टाइम लिमिट होता है, राइटिंग वाले टेस्ट कौन से है, ग्रुप में कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इन सब के बारे में जानना। और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए पीआईक्यू फॉर्म्स क्या होता है, उसे फिल करना। हर एक फील्ड का इंपॉर्टेंट क्या होता है जो पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन होता है, जैसे पेरेंट्स के डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, स्पोर्ट्स डिटेल, ये सब क्यों जानना चाहते हैं, ये मैंने देखा। तो उससे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया। तो आपका कहना ये है कि जो भी वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अगर आपको कुछ लिखने के लिए बोलता है, इंटरव्यू में आपसे कुछ बोलने के लिए बोलता है, और जीटीओ आपसे कुछ करवाता है, तो आपका ये मानना है कि इन सब एक्टिविटीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस है। एम आई राइट? यस सर, एब्सोल्युटली सर। वो पर्पस आपको कैसे पता चला? आपने कैसे उस पर्पस के बारे में जाना ताकि आप सही जवाब दे सकें? सर ये मेरा थोड़ा गेस वर्क जैसा स्टार्टिंग में था कि ये क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये आपको पता होना बहुत नेसेसरी है कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके बारे में आप कितना जानते हो। और पर्सनल इंटरव्यू के दौरान भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड आपको जितना पता है, फ्यूचर में आप जिनके साथ काम करोगे आप उनसे उतना ही ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। और आपके एक लेक्चर में हमने कर्नल भारद्वाज सर भी आए थे, और उन्होंने भी वही बोला था कि आपके बैकग्राउंड के बारे में आप जितना जानते हो उतना ही फ्यूचर में आप अपने ट्रूथ के साथ, अपने मेंस के साथ कनेक्ट करोगे। इसीलिए वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो यूर सेल्फ, नो यूर बैकग्राउंड एक्सेट्रा। तो आपका ये मानना है कि अगर अगर आप में वो क्वालिटीज नहीं है, जो 15 क्वालिटीज फैक्टर 1, 2, 3, 4 जो पूछ रहे हैं, तो उसको आपने इम्बाइब करना है, और इम्बाइब करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो अभी अब मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि इसके साथ अगर आपने ये चीज़ आपने माइंड में रखी और मेरी जो कोचिंग क्लासेस थी अटेंड करी और उसमें से आपको कुछ फायदा हुआ, तो आपने सबसे पहले जाने से पहले तैयारी क्या क्या की? सर टॉकिंग अबाउट एसएसबी, मतलब जब मैंने लिखना एसआरटी वगैरह स्टार्ट किए, तो पिक्चर देख के टैट स्टोरीज में मैं अगर प्रॉब्लम ना हो तो खुद से प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराता था, खुद को हीरो दिखाने के लिए। और मुझे बाद में पता चला कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं है और तुम खुद से डाल रहे हो, तो खुद को जानबूझ के हीरो दिखाने के लिए तुम ये कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर तुम पिक्चर से रिलेट कर रहे हो तो उस टेस्ट का मीनिंग है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। एसआरटी में जो सिचुएशन दी है, स्टार्टिंग में मैं सिर्फ उसकी रिएक्शन लिखता था कि मैं क्या करूंगा, पर वो रिएक्शन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है कि तुम अपना वर्क भी कर रहे हो, वो रिएक्शन को भी हैंडल कर रहे हो और उसका आउटकम क्या आ रहा है। उसके बाद वैट में जब मैं वर्ड लिखता था तो एडवाइजरी सेंटेंसेस लिखता था। अगर डिसिप्लिन हो तो यू शुड बी डिसिप्लिन,
एंड एवरीवन शुड बी डिसिप्लिन, ऐसे एडवाइजरी लिखता था। पर सर ने जैसे बताया कि एडवाइजरी नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे क्वालिटीज देखना चाहते हैं, तुम क्या ज्ञान दे रहे हो ये नहीं देखना चाहते। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली। चलो ये अभी मैं आपको पूछता हूँ, पूरा जो सीक्वेंस में जब आप वहाँ पे एसएसबी के लिए पहुंचे और आपका OIR हो गया, तो पीपीटीटी के बारे में आप बाकी कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि पीपीटीटी में क्या करना चाहिए? एडवाइस के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि पीपीटीटी में पिक्चर जो होती है वो ब्लरी होती है, और जरूरी नहीं, मतलब वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा कि आपने जो थीम लिखी है वो रेयरली किसी से मैच होगी, इतने ज्यादा लोग होते हुए भी, ये उनकी खासियत है। तो हमारे इसमें भी जो पिक्चर था वो थोड़ा ब्लरी था, और 2 कैरेक्टर्स फ्रंट में थे और 1 कैरेक्टर बैकग्राउंड में था। तो किसी को फ्रंट वाले कैरेक्टर मेल दिखे, किसी को फीमेल दिखे, इसलिए जब कैरेक्टर्स में इतने वेरिएशंस आते हैं तो थीम में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आते हैं, और वो टाइम वगैरह देते हैं। और ब्रीफिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एसएसबी। वो हर टेस्ट का ब्रीफिंग इतना क्लियर कट देते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं रहता। अगर आप पूरे तरीके से पहली बार जा रहे हो फिर भी आपको क्लियर कट आइडिया आ जाता है, इतनी अच्छी ब्रीफिंग देते हैं। तो ब्रीफिंग में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बताया कि यहाँ पे बॉक्स में कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं, मेल फीमेल मूड वगैरह एज ये सब, और थीम ऑफ द स्टोरी एंड स्टोरी राइट के लिए कितनी स्पेस होती है। तो जैसे ही टाइम दिया, टाइम खत्म हुआ, सबने अपने पेपर सबमिट किए और उसके बाद ब्रेक हुआ। तो पीपीटीटी में यही एडवाइस है कि जो आपको दिखता है वो ही स्टोरी में कन्वर्ट करके जल्दी से लिखो, उसमें कैरेक्टर्स एज वगैरह मेंशन करो, और टाइटल थीम थीम लिखना बहुत जरूरी है। कभी कभी जल्दबाजी में हम थीम लिखना ही भूल जाते हैं, पर पीपीटीटी में थीम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके थीम पढ़ के ही उन्हें पता चलता है कि आप क्या स्टोरी लिखने वाले हो। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पीपीटीटी के अंदर आपको जो थीम लिखना है, स्टोरी लिखनी है, और साथ में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पीपीटीटी के टाइम पे? पीपीटीटी के टाइम में टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट है, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। पिक्चर देखते ही लिखना कुछ नहीं, जब तक वो ना बोले कि आपको स्टोरी लिखना स्टार्ट करना है तब तक पेन हाथ में भी नहीं लेना है, सिर्फ पिक्चर को देखते ही रहना है, क्योंकि पहले 5 सेकंड का इम्प्रेशन जो होता है उसमें हमारे दिमाग में स्टोरी बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एकदम आप चाहते हैं कि जो पहला इंप्रेशन आपका है उसके ऊपर स्टोरी बनानी है, और जो उनकी ब्रीफिंग है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है? ये यस सर, यस सर, ब्रीफिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस हो गया, स्क्रीनिंग प्रोसेस हो गया, आपको चेस्ट नंबर मिल गए। अभी आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि टीएटी के अंदर आपको क्या क्या सेलिएंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है? टीएटी में भी सेम पॉइंट, पहले वो पूरे बुकलेट का ब्रीफिंग देंगे कि कौन से पेजेस पे क्या होने वाला है। उसके बाद वो टीएटी स्टोरीज के बारे में बताएंगे कि आपको 11 स्टोरीज दिखाई जाएंगी, 12 विल बी ब्लैंक स्टोरी, हर स्टोरी के पिक्चर 30 सेकंड के लिए, वो सब ब्रीफिंग एकदम अच्छे से देंगे। और ये पॉइंट वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि जब भी कोई पिक्चर दिखाई जाती है तब आपको पेन नीचे रखना है, पिछली वाली स्टोरी कंप्लीट करते हुए नहीं बैठना है। फिर वो एक के बाद एक पिक्चर्स आ जाती है, स्टोरी लिखते रहना है। और टाइम का खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी पिछली वाली स्टोरी भी इनकम्प्लीट रह गई तो उसे वैसे ही छोड़ दो, नया वाला पिक्चर देख के उसकी स्टोरी लिखो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस कंप्लीट करने जाओगे तो नई स्टोरी मिस कर जाओगे और ये सीक्वेंस कंटिन्यू होकर आपका अगला पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए जो पिक्चर दिखे पिक्चर क्लियरली ऑब्जर्व करो, उसके माइन्यूट डिटेल्स भी देखो, चाहे वो कितने भी क्यों ना माइन्यूट हो, और आपके दिमाग में आइडिया बनाओ, और पहले आइडिया आते ही स्टोरी अपने आप क्रिएट हो जाती है। और जैसे सर ने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया कि स्टोरी का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, मतलब, और ये वो भी बता दे कि स्टोरी ऐसे लिखो कि व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। ओके, सो दैट मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही पिक्चर दिखनी शुरू हो जाती है आपने पेन छोड़ देना है, और जैसे ही पिक्चर स्टोरी आप पिक्चर दिखनी बंद हो जाती है स्टोरी लिखिए, और जैसे ही नेक्स्ट पिक्चर आती है तो पेन को छोड़ दीजिए, अदरवाइज हेल्प पेनलाइज। तो सिमिलरली आपका जो WAT था, SRT था और SD था, SD की आप तैयारी घर से करके गए थे? SD के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि व्हाट योर पेरेंट्स वगैरह के बारे में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, पर एकदम रट के नहीं गया था, वहां जाके ही अपने आप से वो आ गया। मतलब तैयारी ज्यादा एकदम डिक्टो नहीं की थी, वहां पे जाके मुझे जो पॉइंट्स लिखे वो मैंने कंप्लीट किए। उसमें मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लास्ट पॉइंट के लिए, व्हाट पर्सन यू वांट टू बी में मेरा थोड़ा
इनकम्प्लीट रहेगा, पर वो उतना चलता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था एसडी में। बाकी सब टेस्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो एसडी है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करके लेके जानी चाहिए। और अगर इसमें आपका एक गड़बड़ हुआ तो इस पॉइंट को मैं एंड में एड्रेस करूंगा कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी अब मान लीजिए आप अभी आ जाइए आप जीटीओ के टेस्ट के ऊपर। तो जीटीओ में जो आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था या फाइनल ग्रुप टास्क था या हाफ ग्रुप टास्क था या कमांड टास्क था, इन चारों टास्क में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बाकी बच्चों को? जो भी ऑब्स्टेकल वाले टास्क थे उसमें मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। सिर्फ बेसिक फिजिक्स की कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे पुली वगैरह जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है वही ऑब्जर्व किया। मैं घर से कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं गया था, सब वहाँ पे जाके ही देख के एनालाइज करके जो भी सर ब्रीफिंग देते उसे अच्छे से सुन के वो वहाँ पे परफॉर्म किया था। गुड। इसका मतलब आपको कहना है कि आप ब्रीफिंग अच्छी तरह से सुनिए और वहाँ पे एज पर द सिचुएशन अपना माइंड लगाइए, रीजन आउट करिए, उसको प्लान करिए और उसको एज ए कोऑपरेटिव बंदे की तरह उसको आप एग्जीक्यूट करिए। तो इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में वो ब्रीफ अच्छे से करते हैं कि मॉडल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नरेट भी अच्छे प्रॉब्लम अच्छे से एक बार नरेट करने के बाद हमें वो पैम्पलेट देते हैं जिसमें प्रॉब्लम वापस से लिखा होता है जो हमें खुद को पढ़ना होता है। और उसके बाद सॉल्यूशन लिखने के लिए शीट दिया जाता है जिसमें सॉल्यूशन का टाइम दिया जाता है और उतने टाइम में हमें सॉल्यूशन लिखने के लिए बोलते हैं। और मोस्टली जितने लोग ग्रुप में है उनको ही कंसीडर करके वही हमारी टीम होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मोस्टली चार प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइज 2 प्रॉब्लम और उसके बाद एक नॉर्मल प्रायोरिटी वाला और एक लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है। तो मोस्टली ट्राई ये करना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला काम हम किसी और को दे दे ग्रुप छोड़ के, क्योंकि वो बहुत ही मतलब किसी की गाय खो गई या किसी की गाड़ी रह गई, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। जो हाई प्रायोरिटी वाले प्रॉब्लम है उनमें ज्यादा मैन फोर्स अप्लाई करके प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए टीम को डिस्ट्रीब्यूट करके वो टास्क कंप्लीट करने चाहिए। और इसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम का कैलकुलेशन भी आप करो तो उससे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आप टाइम और डिस्टेंस को भी ध्यान रख रहे हो। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है उसमें बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी और एक लोएस्ट प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी आपने डिफाइन करनी है। लोएस्ट प्रायोरिटी आप किसी और को दे सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो आप अपने ग्रुप में रखिए, जितने ग्रुप में कैंडिडेट्स हैं सबको बराबर बराबर बांटिए और यकीन करिए कि आपको जो भी प्लान एग्जीक्यूट करना है उसमें टाइम और डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि कितना दूर जाना है, कितने समय में पहुंचेंगे, या पैदल चल के जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो समय बदली हो जाएगा। उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए आपने उसको लिखना है और उसको बाद में डिस्कस करके उसको एग्जीक्यूट करना है, जीटीओ को सुनाना है। हमारे जीटीओ को सबको सुनाने को नहीं बोलते, इमीडिएट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन में से कॉमन प्लान जीटीओ को सुनाना पड़ता है। तो डिस्कशन करके आपने कॉमन प्लान पे अराइव करना है और उसके बाद जीटीओ को बताना है। मतलब कि आपने हर हालत में एक कंसेंसस सिचुएशन बनानी है कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। यस सर। ठीक है, ओके। सिमिलरली अभी आ जाइए ग्रुप डिस्कशन में आपके क्या इंप्रेशन थे? ग्रुप डिस्कशन में एक हमारा इंटरनेशनल टॉपिक था कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुला रही है तो अफगानिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट पीस वाइज, सेकंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड थर्ड विल बी पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इसके इन 3 लीड्स में हमें डिस्कस करना था। और सेकंड टॉपिक था कि ड्रग्स इन यूथ और उसके रीजंस देने थे। फर्स्ट लीड था पीयर प्रेशर, सेकंड था मीडिया और थर्ड था लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। ये जो पहले वाला प्रॉब्लम था ये तो मैंने आपको सिखा रखा था, अगर आपको याद है। इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया था आपको, तो उसका वो आपको कौन में आया? सर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जैसे ही सर ने बोला स्टार्ट तो वहाँ पे थोड़ा फिश मार्केट बन गया, इसलिए मैंने फर्स्ट मिनट तक कुछ बोला नहीं, फिश मार्केट को थोड़ा सेटल होने दिया। और जैसे ही वो थोड़ा सेटल हो गया तो थोड़ी सी वॉइस रेज करके मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट डाला। और जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट डाला तो बाकी का ग्रुप मेरे पॉइंट्स पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा 2-3 टाइम्स मैंने अपने इनपुट दिए जिसपे बाकी का ग्रुप डिस्कस करने लगा। तो मैंने उसमें ज्यादा इनपुट देने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता था थोड़ा फिश मार्केट हो रहा है तो कम और क्रिस्प पॉइंट देने से ज्यादा फायदा होगा।
तो आपका मतलब है ग्रुप डिस्कशन में आपने फिश मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया और इंटेलिजेंटली आपने ठीक टाइम पे इंटरवीन किया और पॉइंट्स दिए और यकीन किया कि लोग आपके पॉइंट को लेकर डिस्कस करें और अपना पॉइंट क्रिस्प रखा और अपनी नॉलेज अच्छी रखी। इसका मतलब जो हमने करंट अफेयर्स की लेक्चर शुरू करी थी आपके कोर्स में वो आपके काम आई। मैंने डिस्कशन को लीड भी किया, 2-3 कैंडिडेट्स को चांस भी दिया बोलने का कि लेट चेस नंबर डैश डैश डैश, आई थिंक ही हैज अ गुड पॉइंट, लेट्स लिसन टू हिम करके 2-3 कैंडिडेट्स को बात भी सुनी और फिश मार्केट कम हो इसके लिए ट्राई भी किया। ज्यादा भी ट्राई नहीं किया कि ऐसा ना दिखे कि मैं ही सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, 2-3 बार मैंने ट्राई किया। वंडरफुल वंडरफुल, यही एक लीड थी जो हमने आपको बताया था कि आप वहां पे एक कंसेंसस कैंडिडेट नजर आना चाहिए, मिलजुल के चलने वाला आदमी नजर आना चाहिए, ना कि जो मैंने बोला वही सही है और ना ही दूसरों को रेडिक्यूल करना है, दूसरों को भी इंकरेज करना है कि आप भी बोलिए। तो ये आपने बहुत बढ़िया किया। अभी मुझे अपने इंप्रेशन बताइए, आपके लेक्चरेट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और उसको आपने कैसे टैकल किया? लेक्चरेट में फर्स्ट वाला सब्जेक्ट तो सर मुझे पता ही नहीं था, कुछ तो और ही था। सेकंड वाला था आधार कार्ड, थर्ड वाला था पॉलिटिक्स इन मीडिया एंड फोर्थ वाला था माय हॉबी। तो मैंने आधार कार्ड चूज किया और इंट्रोडक्शन में जो आधार कार्ड पे टैगलाइन होती है मेरा आधार मेरी पहचान, उससे स्टार्ट किया कि एज राइटली सेड मेरा आधार मेरी पहचान। तो आधार कार्ड व्हाट इज आधार कार्ड का 30 या 40 सेकंड में मैंने ब्रीफ किया कि व्हाट इज आधार कार्ड। फिर उसके अकॉर्डिंग अभी आधार कार्ड पे गवर्नमेंट ने क्या क्या कनेक्टिविटी दी है उसको ब्रीफ किया और आधार कार्ड को लेके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनको ब्रीफ किया और एंड में वो सिक्योरिटी चैलेंज हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको ब्रीफ करके फिनिश किया मेरा लेक्चर। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा किया। सबसे आपने एक बढ़िया टॉपिक चुना जो सब जनरल इंटरेस्ट का था। फिर पहले आपने उसके बारे में ब्रीफ किया, फिर उसके जो कनेक्टिविटी के बारे में बताया और फिर उसके बाद आपने उसके चैलेंजेस बताए उनको कैसे ओवरकम करना है। यही एक सीक्वेंस बनाई विच प्रॉब्ली योर थिंग वेंट वेरी वेल। अभी मुझे ये बताइए, जब आपकी स्नेक रेस हो रही थी तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्नेक रेस सबसे ज्यादा फन इवेंट था। मास पेस्ट्री की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी पर हमने एज अ टीम परफॉर्म किया और सब ऑब्स्टेकल एकदम अच्छे से पार किए। 2-3 में हमें डिफिकल्टी आई थी पर हमने कोई रूल हमसे ब्रेक ना हो इसके लिए खास ध्यान दिया और जहाँ पे भी हमें लगा कि हमसे रूल ब्रेक हुआ हमने वो ऑब्स्टेकल खुद से रिपीट किया सर ने बताने से पहले और वो सबसे फन इवेंट था और सबसे ज्यादा मजा हमें उसी इवेंट में आया। उसमें जो सेलियंट पॉइंट्स आप यही कहना चाहते हैं कि आपने एक दूसरे की मदद की और उसको एक फन तरीके से लिया और जहाँ कहीं पे भी रूल से उनको ब्रेक नहीं किया। गुड। अभी मुझे ये बताइए कि जब आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करी, आप सारी ऑब्स्टेकल्स कर पाए या किसी कोई पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल के बारे में बताना चाहेंगे? सर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में सर ने ब्रीफिंग किया और ब्रीफिंग करते वक्त ही वो ऐसे हाइडिंग पॉइंट्स दे रहे थे कि किसी ऑब्स्टेकल को कैसे पार किया जाए और फिर वो होने के बाद हमें 2 शेड्स थे जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बैठना था ताकि अगर कोई कैंडिडेट ऑब्स्टेकल परफॉर्म कर रहा है तो प्रीवियस कैंडिडेट भी उसे नहीं देख सकता और जो कैंडिडेट आगे करने वाला है वो भी उसे नहीं देख सकता। तो अगर कोई कैंडिडेट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल परफॉर्म कर रहा है तो बाकी उसे कोई देख नहीं सकता। इसीलिए जब 30 सेकेंड्स रहते हैं बाकी तब आपको विसल बजा के बुलाया जाता है। आपको जिस ऑब्स्टेकल से स्टार्ट करना है उस पर जाके आप खड़े रह सकते हो और वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो आउट ऑफ 10 इतने सारे ऑब्स्टेकल्स में मैंने 7 ऑब्स्टेकल परफॉर्म किए और टाइम लिमिट की वजह से मेरे लास्ट के 2 ऑब्स्टेकल रह गए और एक मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था जो कि था जिगजैग। तो सभी ऑब्स्टेकल्स मैं फिजिकली फिट हूँ पर स्टैमिना मेरा थोड़ा वहाँ पे कम पड़ गया, वो मुझे बात समझ में भी आ गई। बाकी सब ऑब्स्टेकल मैंने अच्छे से परफॉर्म किए बिना गलती किए बिना हिचकिचाए। तो मैं अच्छा मतलब खुद के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस था पर मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था उसमें। तो ठीक है, ये भी यहाँ भी आपकी थोड़ी कमी रहेगी, इसकी भी हम बात करेंगे जब कॉन्फ्रेंस का टाइम आएगा। ओके, इसके अलावा अभी कौन सा टेस्ट रहेगा? सारे हो गए? जीटी हो गए? यस सर। अभी आप मुझे बताइए, आपका जो इंटरव्यू था उसके लिए आपको कैसे बुलाया गया, किस दिन बुलाया गया और वो पूरी प्रोसेस के बारे में बताइए हमें, कैसे शुरू हुआ? जीटीओ डे 1 के बाद मुझे इंटरव्यू पे डायरेक्टली बुलाया गया ग्राउंड से। तो मैं आपको बुला लिया? नहीं, जीटीओ डे 1 मतलब एसएसबी का डे 3। That's right.
तो मैं पीटी के ड्रेस में ही गया। मुझसे पहले कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा था, तो 1 घंटे तक मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो सर ने बोला कि आप जीटीओ का टास्क परफॉर्म करके आए हैं, तो लेट्स हैव लंच एंड देन वी विल स्टार्ट द इंटरव्यू। तो मैंने बोला नो नो सर, आई एम फाइन, वी कैन स्टार्ट द इंटरव्यू। तो उन्होंने उनके पास मेरा पीआईक्यू था, मेरे सभी सेमिस्टर के मार्कशीट थे, 10th का 12th का मार्कशीट था, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स थे। तो उन्होंने वो देख के बताना स्टार्ट कर दिया कि टेल मी योर मार्क्स इन 10th 12th ग्रेजुएशन, योर फेवरेट सब्जेक्ट्स इन ऑल, योर फेवरेट टीचर, योर फेवरेट फ्रेंड्स, व्हाट स्पोर्ट्स। ऐसा रैपिड फायर करके उन्होंने एटलीस्ट 14 to 15 क्वेश्चन उन्होंने मुझे सीक्वेंसली पूछ लिए। फिर उनको याद रखने के लिए मैंने क्वेश्चंस का फॉर्मेट याद रखा कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कि आंसर का, क्योंकि अगर आप आंसर याद रखोगे तो बीच में ही वो काट देते हैं आंसर और दूसरे टॉपिक पे लेके जाते हैं और वापस से बोलते हैं कि हाँ कंटिन्यू, तो वो लिंक डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए क्वेश्चंस याद रख के रैपिड फायर अच्छे से आंसर किए। फिर सर ने बोला कि पुट योर मास्क डाउन, आई वांट टू सी योर फेस। तो उन्होंने वो बोला, तो मास्क नीचे करके फिर उन्होंने पीआईक्यू को देख के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि आप कहाँ से हो, पेरेंट्स क्या करते हैं। 12th में मेरे मार्क्स थोड़ा डीप आया था मार्क्स में, तो उसका रीजन पूछा, और मिलिट्री क्यों ज्वाइन करना है, आर्मी के बारे में सब कुछ पूछ लिया। फिर करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, और वर्ल्ड अफेयर में उन्होंने मुझे लीड्स दी कि चाइना में क्या हो रहा है, ताइवान में क्या हो रहा है, अमेरिकन इलेक्शंस में क्या, अमेरिका में क्या हो रहा है, सऊदी कंट्रीज और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। मतलब ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स थी जिसमें से वो जानना चाहते हैं कि मैं उस बारे में अवेयर हूँ या ना हूँ। फॉर्चुनेटली आई वाज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो मैंने वो अच्छे से आंसर किया। तो उन्होंने करंट और वर्ल्ड अफेयर से मुझे ज्यादा कुछ पूछा नहीं। उसके बाद पर्सनल फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि डैड क्या करता है, मॉम क्या करती है, सिस्टर क्या करती है, ये सब पूछा। फिर कैसे अप्लाई किया सीडीएस के लिए, क्या एसएससी टेक टीजीसी, इन सब के बारे में पूछा। और फिर यही सब के बारे में घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आपने बेसिकली जो आपको पूछा गया करंट अफेयर्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, मेनली यही पूछा आपको। और ये जो आपने तैयारी करी थी, जो हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनको देखा था, क्लासेस अटेंड करी थी, तो आपके काम आई यहाँ पे। यस सर, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछते हैं। उन्होंने मैं शेयर करना चाहूंगा कि पूछा क्या आप ड्राइविंग करते हो, मैंने कहा यस सर। क्या आपके फादर करते हो, यस सर। उन्होंने कहा आपकी मॉम करती है, तो मैंने बोला नो सर। तो फिर उन्होंने उसका रीजन पूछा कि क्यों नहीं करती, और तुम अगर उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो अपने यूनिट को क्या कन्विंस करोगे। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के वो देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या आता है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सर उनको ड्राइविंग पसंद है, फिर भी कोचिंग क्लास उनको लगा है ड्राइविंग का, और उनका क्लास चल रहा था मार्च में, पर वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में बंद हो गया। मेरी दीदी को ड्राइविंग अच्छे से आती, तो मॉम भी अभी सीख रही है। तो बोले ओके ओके, और फिर आगे मूव ऑन करके गए। फिर उन्होंने उसके बारे में नहीं पूछा। और कोई ट्रिकी क्वेश्चन बताइए। ट्रिकी मतलब तब महाराष्ट्र में एक फेमस एक्टर की डेथ को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा था, और न्यूज में भी वही था। तो उन्होंने पूछा कि इज एनीथिंग हैपनिंग इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन मुंबई। तो मैंने कहा नो सर, अकॉर्डिंग टू नथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन। मैंने कहा नो सर। तो उन्होंने 2-3 बार पूछा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नो सर नो सर, और फिर वो मूव ऑन करके गए। तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि वो उसी इश्यू के बारे में बोलना चाह रहे थे, पर अकॉर्डिंग टू मी वो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था भी नहीं, और उसमें कुछ वैल्यूएबल था भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो जो भी इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे वो जनरल अवेयरनेस के थे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, और इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे अमेरिका में इलेक्शन की बात हो रही है, या अफगानिस्तान वॉर की बात हुई, चाइना की बात हुई, या आपका सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा, या आपको इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा। हमारा राइट? ये सर ये हुआ। और पर्सनल में मेरे खुद के लाइफ के बारे में कि मेरे 12th में मार्क्स कम क्यों आए थे, उसके रीजंस, या मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ या प्रॉपरली मुझे मेरे रीजंस पता है, या फिर और एक था कि मैंने कैसे अप्लाई किया, या फिर मैं कॉलेज में जो भी पढ़ता हूँ तो मेरे टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है, उसको क्रॉस चेक किया कि मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है। और जो मैंने एसडी में लिखा था, तो
मुझे टाइम क्यों नहीं मिला, साइकोलॉजी में मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, और जो भी आंसर दे रहे हो कि ऐसी लाइफ में आपकी कोई सिचुएशन आई थी क्या जिसमें आपको पर्सनल हार्म था या लॉस था फिर भी आपने किया। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो मैंने जेन्युइनली बोल दिया कि सर ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जिसमें मुझे पर्सनल हार्म या फिर लॉस था। तो बोले ओके। तो फिर मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस पूछा। उसके बाद टीचर से रिलेशन के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इसमें घूम घूम के मेरे 12th में मार्क्स कम क्यों थे और जेडब्ल्यू में मेरा रैंक लो क्यों था और उसके लिए मैंने ईयर ड्रॉप क्यों नहीं किया ये पूछा। और उसके बाद करियर ऑप्शन को लेके पूछा कि इफ नॉट आर्मी देन व्हाट। और पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने जैसे बोला कि आप प्राइवेट में जॉब नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, उसको लेके बहुत डिटेल में पूछा कि आप प्राइवेट में जॉब क्यों नहीं करना चाहते, बैंक में क्यों नहीं करना चाहते, बाकी सारी जो एग्जाम से बैंक की जैसे होती है या फिर स्टाफ सिलेक्शन वगैरह होती है उसमें क्यों नहीं करना चाहते, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा। और फिर बहुत बार बोला भी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको नहीं लगता कि आपको जॉब लेनी चाहिए, मॉम डैड पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत। और मेरा डेली रूटीन में पूछा। फिर मैंने जैसे कहा मैं फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने वेट गेनिंग के लिए जिम लगाया था, तो वो थोड़े से ये हो गए कि आपके यहाँ पे पार्क नहीं है क्या, तो जिम क्यों लगाई, इतना एक्सपेंसिव ये वो, ऐसा बहुत घूम घूम के वो बार बार वही चीजें क्रॉस चेक कर रहे थे। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।